Good morning, my luminous students. I am Anshu Kumar Tiwari. Today I am present here with my another video, another lecture number 3 of class 10 physics, first chapter, reflection of light. Today's topics are objects and image, types of image, mirror, types of mirror, some defining terminologies related to the mirror. Okay, before starting today's lecture, I am going to recall you, I am going to remind you what have we studied, what have we discussed, what have we mentioned in my lecture number 1 and lecture number 2. In my previous video, we discussed, we have mentioned about the introduction of light, the definition of light, how do we see the objects, reflection of light, laws of reflection, reflector. Okay, these are the topics that I have discussed in my previous video. Today I am going to start a very first topic of today's lecture. First, object and image. Okay, so look here, pay your attention, my luminous students. Object and image. Object and image, a very first topic. What are the objects in sense of light? लाइट के सेंस में ऑब्जेक्ट को आप कैसे डिफाइन करेंगे? तो आपको पता है इंसिडेंट रेस एंड रिफ्लेक्टिंग रेस और इंसिडेंट रेस रिफ्रैक्टेड रेस, ये दो चीज तो आपको पता है, ठीक है? ये चीज मैंने वी हैव डिस्कस्ड इन माय प्रीवियस वीडियो about the in this incident rays and reflected rays. Okay, object and image, the intersection point, the object, where does object locate, where does object locate? The object is located there where incident rays intersect each other. यानी जहां पर इंटरसेक्टिंग जो इंसिडेंट रेस होती है इंटरसेक्ट करती हैं, वहीं पर क्या होता है? ऑब्जेक्ट का निर्माण होता है। बेटा आइए देखते हैं, तो कह सकते हैं द इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ इंसिडेंट रेस, okay, incident rays represent object, and whereas reflected rays means after reflection, after collision to the smooth surface, ठीक है ना, बाउंसिंग बैक रेस, तो यहां पर रिफ्लेक्शन ऑफ द रिफ्लेक्शन, whereas reflected rays, whereas the intersecting point of incident rays represent objects, whereas the intersection point of reflected rays represent image. ओके, एक एग्जांपल लेते हैं, समझते हैं फिगर रे डायग्राम के माध्यम से। तो आइए एक रे डायग्राम देखते हैं। इसके लिए विजुअलाइजेशन देगा आपको रे डायग्राम। इट इज अ स्मूथ सरफेस, हियर इज अ मिरर, है ना? अभी हम आपको मिरर के बारे में बताएंगे बाबू।
Here is a mirror, here is principal axis, pole, center of curvature, okay, focus and center of curvature, okay। अभी इन सब चीज के बारे में हम आपको बताएंगे। एक एग्जांपल है, रे डायग्राम समझा रहे हैं आपको। When a parallel ray is coming parallel to the principal axis, after reflection it gets back, it passes through the principal axis, so it passes through the principal focus, okay। ये this is the incident ray, okay, and this is the reflected ray। incident ray है I1 मान लेते हैं इसको, ठीक है। यहां पर देखिए बेटा, ये आपका R1 हो गया रिफ्लेक्टेड। एक इंसिडेंट रे यहां से ऐसे आ रहा है, कहां से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ये ऐसे, और फिर कहां जाएगी, ऐसे नहीं, ये निकल जाएगी, ठीक है ना। When a ray of light coming from the center of curvature it passes coincidentally, okay, ये coincidentally उसी पर क्या हो जाती है, चली जाती है बेटा, संपादन में एक नहीं पर। तो अब यहाँ पर एक चीज क्लियर हो रहा है, ये हो गया बेटा, इससे यहाँ पर क्या कर रहा है, इंसिडेंट रेस। तो दिस इज द ऑब्जेक्ट, दिस इज द ऑब्जेक्ट, ठीक है। इफ यू गो बाय डेफिनेशन, then the intersecting point of the incident rays, the intersecting point, this is the intersecting point of the incident rays, this is the incident, this is the incident, so this is the object, okay, and this is reflected ray and this is reflected ray. Where is the intersection point of the reflected rays? This, so this is the image, this is the image, okay। तो आपको मैं आशा है कि आई होप आप समझ गए होंगे कि व्हाट आर द ऑब्जेक्ट्स एंड इमेज इन सेंस ऑफ, इन व्यू ऑफ लाइट, यानी लाइट के सेंस में ऑब्जेक्ट और इमेज क्या होता है बेटा, इसके बारे में आपको जानकारी मिल गई होगी। अब हम आपको बताएंगे, जैसे आप भी देख सकते हैं, जैसे कि हम मिरर में अपना फेस देख पाते हैं, तो जो हमारा फेस है ना, जो हमें दिखाई दे रहा है मिरर के पीछे, वो हमारा इमेज है, और हम क्या है, ऑब्जेक्ट है ना सही। तो क्या होता है उसमें भी इमेज बनता है, क्लियर है ना। तो अभी हम आपको बताएंगे मिरर में किस तरीके से इमेज बनता है, हम आपको एग्जांपल्स लेके बताएंगे कि मिरर क्या होता है बेटा। तो आइए अब हम देखेंगे बेटा, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इमेजेस, ठीक है ना, कितने टाइप्स के इमेज होते हैं बेटा। तो आइए देखते हैं, आपने दो तरीके के इमेज देखे होंगे, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज, मींस इमेजिनरी इमेज, हम जिसको इमेजिन करते हैं। एक होता है बेटा रियल इमेज। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इमेजेस, रियल इमेज। व्हाट आर द रियल इमेज बेटा? द रियल इमेज, हमने आपको सब शुरू में इन माय प्रीवियस वीडियो, इन माय फर्स्ट लेक्चर, वेरी फर्स्ट लेक्चर, we have discussed about 3 types of rays. Rays means the direction of the propagation of the light. We have discussed too much about the rays, parallel rays, divergent beam, and third one is convergent beam. Convergent beam means वो कन्वर्स होता है, कन्वर्स होता है। कन्वर्स का मतलब क्या हुआ? If the beam of light, rays of light actually meet at a point, in this case rays are known as converging rays, okay। और जब यदि क्या हो, spread in all direction, तो उसको क्या बोलेंगे? डाइवर्जिंग रेस, ठीक है ना। जैसे किसी बल्ब से प्रकाश क्या होता है? डाइवर्ज होता है। सन का रेस क्या होता है? डाइवर्ज हो रहा है, चारों तरफ फैल रहा है ना। अब इसके बाद हमारे, जैसे मान लीजिए अभी आप यहीं पे देख लीजिए कि, अच्छा एक एग्जांपल और लेते हैं, एक एग्जांपल हम भी लेते हैं। रियल इमेज की हम बात कर रहे हैं, तो रियल इमेज होता क्या है? व्हेन, इसको हम कन्वर्जिंग बताएंगे, व्हेन एंड व्हेन रेज ऑफ लाइट, when rays of light are coming from a source of light and actually meet
and actually meet at a point after reflection image is said to be real image आपकी मर्जी में कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि when rays of light are coming from a source of light and actually meet at a point और actually बोलने की जरूरत नहीं है और converse at a point ओके तो आफ्टर रिफ्लेक्शन भी मत कहिए इसमें आप कह सकते हैं आफ्टर कन्वर्स ओके सॉरी when rays of light are coming from a source of light and converse and after conversing it meets at a point भाई कन्वर्स होके ना मिलेगा ये धीरे धीरे आएगा ऐसे और आकर के पॉइंट पे मिलेगा उसको कन्वर्सिंग रेस बोलते हैं बेटा। और ये कन्वर्सिंग रेस के द्वारा जो इमेज बनता है बेटा जो कन्वर्सिंग रेस के जो इमेज बनता है वो होता है बेटा क्या चीज आपका वो आपका होता है बेटा रियल इमेज। याद रखिएगा कि रियल इमेज इट इज द डिफरेंस बिटवीन वर्चुअल एंड रियल इमेज। रियल इमेज कैन बी प्रोजेक्टेड on the screen ये स्क्रीन यानी पर्दे पर लिया जा सकता है ना। स्क्रीन पर क्या किया जाता है रियल इमेज को लिया जा सकता है। जैसे हम आपको पता है रेटिना हमारा एक स्क्रीन होता है बेटा। हमारे ह्यूमन आई में जो रेटिना होता है वेयर इमेज फॉर्म जहां पर इमेज बनता है बेटा किसी भी ऑब्जेक्ट का वो क्या होता है बेटा स्क्रीन बोला जाता है उसको। और वहां पे आप समझ सकते हो कैसा इमेज बनता है बेटा रियल एंड इन्वर्टेड बनता है कि नहीं बनता। तो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनता है वहां पर क्योंकि वो क्या है बेटा स्क्रीन है। हमने रियल इमेज को हम कहां ले सकते हैं स्क्रीन पे प्रोजेक्ट कर सकते हैं। बात समझ में आई क्लियर है। लेकिन वर्चुअल इमेज को हम स्क्रीन पे नहीं प्रोजेक्ट करा सकते हैं। बात समझ में नहीं। जो इमेज कहां बनी है कहां बनती है रियल इमेज हमेशा कहां बनती है बेटा इन फ्रंट ऑफ द मिरर और मिरर के बिहाइंड बने मिरर के पीछे अगर कोई इमेज बनती है तो वर्चुअल होता है बेटा है ना जी। तो अब मिरर के पीछे हम कौन सा स्क्रीन लगाने जाएंगे बाबू शीशा आईना फोड़ के मिरर फोड़ के हम पीछे थोड़ी ना चले जाएंगे सोचने की जरूरत है। तो ऑन द स्क्रीन याद रखिएगा रियल इमेज ऑलवेज इन्वर्टेड ये क्या होता है ऑलवेज इन्वर्टेड होता है बेटा। ये कहां बनता है मोस्टली कहां बनता है बेटा कॉनकेव मिरर मोस्टली कॉनकेव मिरर पे बनता है ठीक है ना ओके। लेंस बताएंगे तो लेंस में बताएंगे कहां बनता है बेटा। तो हम कह सकते हैं बेटा कि when rays of light are coming from a source of light ठीक है and coming from the source of light and converse okay converse in this case the intersection point of the conversing rays is known as real image। हम कह सकते हैं एक लाइन में बेटा इसकी डेफिनेशन बहुत ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं। द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ कन्वर्जिंग रेज आर कॉल्ड real image can be projected on the screen it is always inverted it is formed in the concave mirror okay बेटा। ये रियल इमेज का जैसे हमारे स्क्रीन पे बनता बेटा रेटिना पे ठीक है ना जो भी हम लोग पर्दे पे फिल्म देखते हैं ना बेटा वो रियल इमेज होता है। हम रियल इमेज को प्रोजेक्ट करा सकते हैं जबकि वर्चुअल इमेज को नहीं करा सकते हैं। चलिए अब देखते हैं बेटा वर्चुअल इमेज या फिर इमेजिनरी इमेज भी हम इसको कह सकते हैं। आइए वर्चुअल इमेज क्या होता है बेटा बात कर लेते हैं। वर्चुअल उसी का भाई होगा उसका ठीक अपोजिट होगा
वो प्लस तो ये माइनस होगा, वो इन्वर्टेड तो ये क्या होगा, इरेक्ट होगा। अब सोचिए ना, वर्चुअल इमेज क्या है बेटा, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। आइए देखते हैं, सीधे कह सकते हैं बेटा, when rays of light, सेम वैसे ही होगा बेटा, rays of light appears to diverge, है ना, when rays of light is coming from a source of light and diverge or appears to meet after रिफ्लेक्शन। जबरदस्ती इसको मिलाते हैं बेटा, अपीयर कराते हैं, अपीयर होता है जैसे पीछे हम जबरदस्ती इसको मिलाते हैं, ठीक है ना, हम बताएंगे अभी। आफ्टर रिफ्लेक्शन इज नोन एज वर्चुअल इमेज। अब वर्चुअल इमेज कहां बनता है बेटा, वो तो इन फ्रंट ऑफ मिरर बनता है, जबकि ये हमेशा बेटा ध्यान रखिएगा वर्चुअल इमेज बिहाइंड द मिरर, और ये बनता है इट फॉर्म्स बिहाइंड द मिरर। ओके, सो इट कांट बी वर्चुअल इमेज can't be projected on the screen। ओके, देखिए डायरेक्ट जो हमारा मिरर देता है, जैसे मान लीजिए कि हमारे रेटिना पे इमेज बना, रियल एंड इन्वर्टेड बनता है, वो वहां पे सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, सेंसिटिव सेल्स होती हैं, वो रॉड्स तुरंत लाइट सिग्नल को इलेक्ट्रिक सिग्नल में बदल के मैसेज कैरी करके ले जाती है ब्रेन के पास, और ब्रेन तुरंत हमारे सामने रिफ्लेक्ट करके बिना स्क्रीन पर दिए उसका वर्चुअल और इरेक्ट इमेज देता है। ठीक है ना, क्लियर है ना। अब आइए ये बताइए बेटा, ये तो वर्चुअल इमेज कैन नॉट बी प्रोजेक्टेड ऑन द स्क्रीन बिहाइंड द मिरर, ये कहां बनता है? अधिकांशतः मोस्ट केसेस जो होते हैं कन्वेक्स में होते हैं, मोस्टली कन्वेक्स मिरर में बनता है बेटा। और एक चीज और जानते हैं, एक केस कॉन्केव मिरर भी होता है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए तो कह सकते हैं when rays of light is coming from a source of light and diverge or appears to meet जबरदस्ती मिलाते हैं हम लोग, ठीक है ना। आफ्टर रिफ्लेक्शन इज नोन एज द वर्चुअल इमेज। ये हमेशा कहां बनता है? बिहाइंड द मिरर। वर्चुअल इमेज कांट बी प्रोजेक्टेड ऑन द स्क्रीन, कॉन्वेक्स मिरर, ध्यान रखिएगा। और एक चीज बहुत आसानी से इसको डिफाइन कर सकते हैं, जैसे हमने पिछले रियल इमेज को हमने डिफाइन किया, कह सकते हैं हम लोग कि वर्चुअल इमेज the intersection point of the diverging image is known as the virtual image। okay, now diverging rays माने आफ्टर रिफ्लेक्शन की मैं बात कर रहा हूं, the intersection point of the diverging rays after reflection is known as the virtual image। चलिए अब इसका थोड़ा सा एक रे डायग्राम से हम लोग समझ लेते हैं बेटा, बेहतर होगा तो हम लोग रे डायग्राम से इसको समझ ले। चलिए आइए देखते हैं हम लोग एक रे डायग्राम से समझते हैं। जैसे बेटा या फिर ये भी आप देख सकते हैं कि हमारा एक मिरर में अभी ऐसे ही समझिए, या फिर बना लीजिए जैसे ये कोई मिरर है बेटा, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अभी हमने वो फिगर बनाया था बेटा, कोई ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है, ठीक है, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिहाइंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये कहां से जाएगा बेटा? इट पासेस थ्रू द फोकस, पैरेलल है ना ये, और ये एक आ रहा है बेटा यहां से, ये कहां से है? ऐसे। दिस इज द इमेज ना, ये कहां बना है? इन फ्रंट ऑफ द मिरर, जिधर से रेज आ रही है उधर ही इमेज बना है। हम कह सकते हैं कि दिस इज फॉर्म इन फ्रंट ऑफ द मिरर, ये सो इट इज रियल।
क्या होगा बेटा, रियल इमेज, क्योंकि इन फ्रंट ऑफ मिरर होता है। देखिए रियल है इसीलिए तो ये क्या बना है बेटा, इन्वर्टेड बना है। बात समझ में आ रही है, इसीलिए तो ये बना है इन फ्रंट ऑफ मिरर। मिरर बात समझ में आया कि नहीं आया? इज इट क्लियर? अब एक हम ले लेते हैं प्लेन मिरर बेटा। प्लेन मिरर में जो इमेज बनता है वो कैसे बनता है बेटा? प्लेन मिरर में जो भी इमेज बनता है बेटा हमेशा याद रखिएगा, जैसे मान लीजिए कि ये कोई प्लेन मिरर है, तो जैसे कि यहाँ पर अगर मान लीजिए कि ये नॉर्मल हो गया, अगर यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखे हैं बेटा तो इसका इमेज कहाँ बनेगा, इधर बनता है। बात समझ में नहीं है ना? ये हमेशा ऐसे है तो यहाँ पे ऐसे बनेगा। यानी कि देखिए ऑब्जेक्ट पीछे बना है बेटा, कहाँ बना है? ठीक, ऑब्जेक्ट इसके पीछे बना है। बात समझ में आ रही है? ऑब्जेक्ट क्या बना है? बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर, अपोजिट साइड में बना है। तो इस स्थिति में ये देखिए बेटा, ये वाला क्या हो गया आपका, ऑब्जेक्ट हो गया, ये क्या बन गया बेटा, इमेज बन गया। देखिए आपका वर्चुअल है कि इरेक्ट है? सॉरी वर्चुअल तो है, इसलिए ये बिहाइंड द मिरर बना है, तो ये हो गया बेटा वर्चुअल। क्या हो गया? वर्चुअल। ये क्या हो गया बेटा? इरेक्ट हो गया। इरेक्ट के साथ साथ क्या हो गया? इरेक्ट के साथ साथ क्या हो गया बेटा? सीधी सी स्पष्ट बात हो गई, इरेक्ट के साथ साथ बिहाइंड द मिरर। ओके, चलिए, और इट कांट बी प्रोजेक्टेड ऑन द स्क्रीन। ओके, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द टाइप्स ऑफ इमेज। चलिए, अब इसके बाद हम बात करेंगे बेटा थोड़ा सा, इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि मिरर क्या होता है बेटा। तो मिरर में भी टू टाइप्स के मिरर होते हैं बेटा, हम लोग चर्चा करेंगे। मिरर सबसे पहले क्या होता है, व्हाट इज मिरर? मिरर क्या होता है बेटा? मिरर इज अ गुड रिफ्लेक्टर। मिरर इज a good reflector, a good reflector. Mirror is a medium, ठीक है ना? मिरर इज गुड रिफ्लेक्टर, यानी कि मिरर इज अ गुड रिफ्लेक्टर, है ना? अब गुड रिफ्लेक्टर का काम कब करेगा ये? गुड रिफ्लेक्शन कब होगा यहाँ पे? रिफ्लेक्शन कब गुड होगा बेटा? एक मिरर जो है गुड रिफ्लेक्टर का काम कर रहा है। मिरर में बेटा क्या होता है? सिल्वर कोटेड होता है, ठीक है ना? मिरर इज अ गुड रिफ्लेक्टर। यहाँ पे ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, मिरर इज a part of glass. Mirror is a part of glass which bounces back, which is able to bounces back the ray of light at large scale, यानी बड़े पैमाने पर क्या करती है? मिरर रे ऑफ लाइट को रिफ्लेक्ट करती है। यानी कि कह सकते हैं कि मिरर इज अ पार्ट ऑफ ग्लास इन विच reflection of light takes place at large scale, at big scale, ठीक है ना? यानी कि मिरर क्या होता है? पार्ट ऑफ ग्लास है जिसमें सबसे ज्यादा क्या होता है? रिफ्लेक्शन होता है। हालांकि आइडियल नहीं है बेटा, आइडियल इस दुनिया में कोई भी चीज नहीं है। मैंने पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि रिफ्लेक्शन के साथ RAT, रिफ्लेक्शन, एब्जॉर्प्शन और ट्रांसमिशन तीनों होता है, बस परसेंटेज कम हो जाता है, बहुत ज्यादा कम हो जाता है। किसकी तुलना में? इन कंपैरिजन टू रिफ्लेक्शन। मिरर में सबसे ज्यादा क्या होता है? रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है ना? ओके, तो बेटा ये मिरर होता है बेटा। अब मिरर को दो भागों में बांट दिया गया, ठीक है? मिरर इज क्लासिफाइड इन टू कैटेगरीज। मिरर इज क्लासिफाइड इन टू कैटेगरीज। आइए देखते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द इमेज फॉर्मेशन, ऑन द बेसिस ऑफ द इमेज, रियल इमेज एंड इन्वर्टेड इमेज, इसको भी दो भागों में बांट दिया गया। कौन कौन बेटा? पहले तो यहां बांट दिया गया प्लेन मिरर
plane mirror, and second one is plane mirror and second one is spherical mirror. कुछ लोग इसको कर्व्ड मिरर भी बोलते हैं, स्फेरिकल, कर्व्ड, कुछ लोग इसको पैराबोलिक भी बोल देते हैं, कोई बात नहीं है, बोलिए पैराबोलिक मिरर। इसको समझने से पहले बेटा मिरर की जो प्रॉपर्टी होती है मैं वो समझाऊंगा आपको। मिरर क्या होना चाहिए बेटा? एक मिरर जो होना चाहिए, पहली बात तो ऑप्टिकली प्लेन होना चाहिए, ऑप्टिकली प्लेन, ठीक है ना। दूसरी चीज की एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस इसमें होनी चाहिए, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, यानी रिफ्लेक्टिंग सरफेस किसको बोलते हैं बेटा? दूसरी सरफेस होती है वो हाईली पॉलिश्ड सरफेस होती है, हाईली पॉलिश्ड सरफेस होती है, सरफेस यानी जिसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्टर का काम करती है बेटा, जिसमें यूज हम लोग किस चीज को करते हैं? एसी को करते हैं, एचडी को करते हैं या फिर एल्यूमिनियम को करते हैं। बात समझ में आ रही है? तो टू अवॉइड द रिमूवल ऑफ द एसी लेयर, थिन लेयर ऑफ एसी, है ना, इट इज प्रोटेक्टेड बाय द रेड पेंट, यानी जिसको हम लोग कहते हैं रेड ऑक्साइड बोलते हैं। यानी कि ये जो पीछे पेंट दिख रहा है ना, ये जो पेंट होता है पहले सिल्वर का करते हैं या फिर एचडी का, जैसे एल का कर देते हैं, एल्यूमिनियम का। इसके बाद इसकी कोलाइजन को रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं? इसको ऑक्सीडेशन को रोकने के लिए, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन प्रोसेस को रोकने के लिए हम लोग क्या कर लेते हैं? रेड ऑक्साइड का लेयर इस पे चढ़ा देते हैं, ठीक है ना। क्लियर हो गया? इसमें क्या होता है कि हाईली पॉलिश्ड सरफेस एक होता है, इस सामने वाला जो पार्ट होता है जिधर से रेज आती है, यानी जो रेज को रिफ्लेक्ट कराता है, बाउंसिंग बैक कराता है, उसको हम रिफ्लेक्टिंग सरफेस बोलते हैं, ठीक है। जैसे इसमें इधर से पेंट करती है तो ये वाला रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया और ये वाला हाईली पॉलिश्ड सरफेस हो गया। ये ऑप्टिकली प्लेन होना चाहिए बेटा, ठीक है ना, ऑप्टिकली प्लेन होना चाहिए। दूसरी चीज क्या है? एक और चीज की ओपेक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ओपेक होना चाहिए। तो ये हाईली पॉलिश्ड करते हैं हम लोग, कोटेड करते हैं इसको, ये क्या करता है? उसको ओपेक ही करने का काम करता है, क्योंकि अगर ओपेक नहीं करते बेटा ये ट्रांसपेरेंट होता तो मैंने आपको बताया था कि ट्रांसपेरेंट ग्लास में सबसे ज्यादा परसेंटेज क्या होता है? किसकी? ट्रांसमिशन की होती है। ट्रांसपेरेंट ग्लास होगा तो वहां ट्रांसमिशन ज्यादा होगा बेटा, ठीक है ना, आर पार हो जाएगी लाइट। आइए अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, ठीक है। ये तो मिरर की प्रॉपर्टी हो गई, ऐसे मिरर का होना चाहिए प्रॉपर्टी। अब इसके बाद हम समझते हैं कि प्लेन मिरर क्या होता है, whose reflecting surface is plane। और मिरर, चलिए सबसे पहले हम प्लेन मिरर की और डेफिनेशन भी समझेंगे, इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, एक पूरा वीडियो होगा लंबा सा, बड़ा लेंथ वाला। प्लेन मिरर मींस a mirror whose reflecting surface is straight, is plane। क्या हो? प्लेन। या क्या होगा? यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जो पार्टिकल्स है ना वो स्ट्रेट, बिल्कुल क्या होगा? स्ट्रेट, यानी कुछ इस तरीके से, जैसे ये ऐसे, ये देखिए बेटा तो बिल्कुल क्या होता है? ये स्ट्रेट है, तो स्ट्रेट होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? इसको हम लोग बोलते हैं बेटा प्लेन मिरर। क्या बोलते हैं बेटा? प्लेन मिरर। अब इसके बाद प्लेन मिरर के बाद दूसरा जो आता है वो होता है बेटा आपका स्फेरिकल मिरर। बिल्कुल प्लेन की जगह पे क्या कर देंगे बेटा? कर्व्ड कर देंगे। क्या कर देंगे? कर्व्ड कर देंगे। कह सकते हैं अब प्लेन मिरर को क्या कह सकते हैं? रेक्टिलिनियर होता है, उसमें जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं ना रेक्टिलिनियरली होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है? कर्विलिनियर होता है बेटा। देखिए मैं बता रहा हूं, यानी कि a mirror, देखिए a mirror whose reflecting surface is curved, ओके। यानी क्या होता है? कर्व कहिए या फिर डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है बेटा, जो विस्तार होता है ना, जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना, एक्सपेंशन, वो क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूशन
ऑफ मॉलिक्यूल्स यानी विस्तार ऑफ मॉलिक्यूल्स जो होता है बेटा, इसमें क्या होता है याद रखिएगा, कर्वीलिनियर होता है, कर्वीलिनियर होता है। बात ओके, ठीक है ना। तो मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व, जैसे देखिए ये क्या है कर्व है, रिफ्लेक्शन सरफेस क्या है कर्व है, ठीक है। या फिर कह सकते हैं ए मिरर व्हिच इज द पार्ट ऑफ अ हॉलो ग्लास स्फीयर, हॉलो ग्लास स्फीयर यानी हॉलो ग्लास स्फीयर का ये क्या होता है पार्ट को इसको काट देंगे यहाँ से और पेंट कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा मिरर बन जाएगा, अंदर से कर देंगे क्या बन जाएगा कॉन्वेक्स बन जाएगा, ठीक है बेटा। ये आपका हो गया बेटा द मिरर विच रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होगा इसमें बेटा कर्वीलिनियर होगा, उसमें क्या था प्लेन में रेक्टिलिनियर। अब हम लोग बात कर लेते हैं बेटा थोड़ा सा इसको इरेज करके कि इसको भी दो भागों में डिवाइड किया गया, क्लासिफिकेशन ऑफ मिरर। आइए थोड़ा सा बात कर लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर को भी दो भागों में बांटा गया बेटा। देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। फर्स्ट कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर बस वही, और स्फेरिकल मिरर और पैराबोलिक मिरर और स्फेरिकल मिरर whose reflecting surface, whose reflecting surface is curved inward, inwards is known as concave spherical mirror, concave spherical mirror, ओके बेटा। यानी जो कॉनकेव मिरर होता है उसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है बेटा वो क्या होता है कर्व इनवर्ड होता है, यानी अंदर की तरफ धंसा हुआ होता है। जैसे चम्मच को आप देखे होंगे तो चम्मच में जो अंदर का धंसा हुआ पार्ट होता है, अगर इधर से ऐसे उठा के देख रहे हैं तो वो आपका क्या हो जाएगा, ऐसे अगर चम्मच को सीधा करके देख रहे हैं ना तो वो आपका हो जाएगा कॉनकेव मिरर की भांति काम करेगा। जैसे ही उसको रिवर्स करके देखेंगे डायरेक्शन उसका तो वो आपका क्या काम करेगा बेटा कॉन्वेक्स मिरर का काम करना शुरू कर देगा। तो देखिए बेटा स्फेरिकल मिरर होता है बेटा, ठीक है। तो इसका देखिए ये ऐसे ये क्या होता है, इट इज द पार्ट ऑफ द हॉलो स्फीयर, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से बनता है, ये हॉलो स्फीयर का पार्ट है, इसको काट के यहाँ से निकाल देते हैं, ठीक है। यहाँ से ऐसे निकल जाता है, ये पेंट करते हैं सिनेमा का, ठीक है। इसके बाद ये वाला जो देख रहे हो पार्ट का अंदर वाला ये जो पार्ट देख रहे हो, ठीक है ना, जिधर से लाइट आती है सोर्स से, ठीक है ना, जिस सरफेस पे कोलिजन करती है उसको रिफ्लेक्टिंग सरफेस बोलते हैं ना, ये होता है हाईली पॉलिश्ड सरफेस। तो देख सकते हैं आप ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है कर्व्ड इनवर्ड है, ठीक है ना, कर्व्ड इनवर्ड है। अब इसी के ठीक अपोजिट करने से कॉन्वेक्स में क्या करेंगे बेटा, इसका ठीक अपोजिट करिए, ठीक है। हम यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स कर लेते हैं। स्फेरिकल मिरर whose reflecting surface is curved outward, क्या कर लेंगे बेटा outward is known as is convex mirror। एनी प्रॉब्लम बेटा। अब देखिए इसी को हम लोग बनाते हैं, इसको ऐसे अलग कर देते हैं। अगर ऐसे कर लेते हैं बेटा इसको, ये ऐसे हो जाता है, यानी कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होगा बेटा, ठीक है ना, रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये वाला है, ऊपर इधर वाला, इधर से लाइट आए तो इधर से तो होगा ना, तो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होता है कर्व्ड आउटवर्ड, बाहर की तरफ निकला हुआ बल्ज, ठीक है ना, बाहर की तरफ निकली हुई आंखें बल्गिंग आईज बोलते हैं ना, उसी तरीके से ये बल्गिंग है बेटा, ठीक है ना, बल्ज आउट है, बल्ज आउट, ठीक है ना। चलिए ये हो गया आपका बेटा कॉन्वेक्स और कॉनकेव का खेल, ठीक है ना, ओके बेटा। अब ये कॉन्वेक्स और कॉनकेव का भी खेल हो गया आपका। अब एक चीज मैं आपको बता दूं कि कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर में इमेज फॉर्मेशन जिसकी चर्चा हम विधिवत करेंगे, डीपली करेंगे इन माय नेक्स्ट वीडियो, ओके। तो तैयार रहिएगा, ठीक है। आई एम कमिंग सून विद माय लेक्चर नंबर 4 with very interesting topic image formation in
in mirror, concave mirror and convex mirror. That is the most important topic in your reflection of light. Okay, thank you very much.